السلام علیکم، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اس بلیٹن کی اہم خبروں پر۔ آروگیہ شری اسکیم میں تمام شہریوں کو شامل کرنے ریاستی حکومت کا غور، انشورنس پالیسی پر نظر ثانی کرنے چیف منسٹر کی ہدایت۔ ریاست میں مزید 2600 جائیدادوں پر تقررات کے لیے APPSC کا اعلامیہ جاری۔ میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب 3 جنوری تک کے لیے ملتوی، ڈپٹی میئر کے لیے امیدوار کو 29 دسمبر تک قطعیت دینے کانگریس کا فیصلہ۔ اور 22 دسمبر کو ہوئے سائنسدان کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت، جھوٹی کہانی بنانے والا چوکیدار قاتل گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ آروگیہ شری اسکیم میں ریاست کے تمام شہریوں کو شامل کرنے پر حکومت غور کر رہی ہے۔ کیمپ آفس میں آروگیہ شری ٹرسٹ 104 108 سروس اور NRHM پر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس طلب کیا۔ اجلاس کے بعد سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر صحت DL رویندر ریڈی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر نے آروگیہ شری کے تحت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کو جو مفت علاج کی سہولت فراہم کی وہ جاری ہے اور اس کو برقرار رکھتے ہوئے ریاست کے تمام عوام کو اس اسکیم کے دائرے میں لانے اور اسے ٹرسٹ یا انشورنس کے تحت روب عمل لانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے موجودہ انشورنس پالیسی پر نظر ثانی کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک نئے ٹینڈرز طلب نہیں کیے جاتے موجودہ انشورنس کمپنیوں کی خدمات سے ہی استفادہ کیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ دیگر ممالک میں طب اور صحت پر فنڈز کے استعمال کا جائزہ لینے کی چیف منسٹر نے ہدایت دی ہے۔ اس کے علاوہ 104 سروس کو آروگیہ شری ٹرسٹ کے حوالے کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ DL رویندر ریڈی نے بتایا کہ 108 سروس کو مکمل کارکرد بنانے کے لیے حکومت نے 31 دسمبر تک کے تمام بقایا جات ادا کر دیے ہیں اور 1 ماہ کے اندر تمام گاڑیاں دستیاب رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود اگر اس کی خلاف ورزی کی گئی تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایک سوال پر DL رویندر ریڈی نے بتایا کہ حکومت HMRI کی جانب سے کی گئی غلطیوں سے ہوئے نقصان کی پابجائی نہیں کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ HMRI کے ریکارڈز کو حکومت نے منجمد کر دیا ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ ریاست کو NEET سے مستثنا رکھے جانے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر وزیر صحت نے بتایا کہ مرکز نے ریاست کو اس ٹیسٹ سے 1 سال تک کے لیے مستثنا رکھا ہے۔ ఇంట్రెస్ట్ గా చాలా మంది కాబట్టి కాల్ సెంటర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కాబట్టి మీరు ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ కూడా వర్కౌట్ చేయండి, ఫిక్స్డ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ చేసేదానికి వర్కౌట్ చేసి నాకు ఒక 2-3 రోజులు తెలపండి అని చెప్పడం జరిగింది। 104 108 ముఖ్యమంత్రి గారు స్పెసిఫిక్గా చెప్పారు, అన్ని వెహికల్స్ ఆన్ రోడ్ రావాలి 1 నెల లోపల। వాళ్ళకు క్యాపెక్స్ కూడా రిలీజ్ చేసినాము 12,78 లక్షల ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాము। వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఏమన్నా కూడా نیکسلزم اور دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے پڑوسی ریاستوں میں تال میل ضروری ہے۔ قومی داخلی سلامتی کمیٹی کے صدرنشین VK دگل نے ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں کو یہ مشورہ دیا۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ اجلاس میں VK دگل نے ریاست میں سلامتی کے انتظامات اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے داخلی سلامتی کے لیے اقدامات کو مزید بہتر بنانے پر بھی زور دیا۔ دگل نے پڑوسی ریاستوں کے ساتھ اطلاعات کے تبادلے کو یقینی بنانے پر خصوصی توجہ دینے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے ریاست کے ساحلی علاقوں کی صورتحال اور معیشتوں کی سرگرمیوں پر بھی ریاستی عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں وزیر داخلہ سبیتا ریڈی، چیف سیکریٹری پنکج دیویدی، DGP دینیش ریڈی، سٹی کمشنر پولیس AK خان کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ قوم کی خدمت ہی کانگریس کا نصب العین ہے اور عوام کی ضروریات کو پورا کرنے والی جماعت کانگریس ہی ہے۔ کانگریس کی 127ویں یوم تاسیس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 127 سال کے دوران
कांग्रेस के कई कायदीन ने अवाम की खिदमत की और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम किया। चीफ मिनिस्टर ने लोकपाल और लोक आयुक्ता में दस्तूरी तरमीम से रोकने का अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का मकसद वाज़ेह है कि बदउनवानियों का खात्मा हो, लेकिन अपोजिशन जमातों ने उसे रोकने की जो कोशिश की है इससे अवाम बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुनों को ओहदे के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि पार्टी कायदीन और कारकुन सख्त मेहनत करेंगे तो ओहदा खुद ब खुद उनके पास आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कई कायदीन आए और गए, लेकिन कांग्रेस अपना काम करती रही। वज़ीर आला ने यह ख्याल जाहिर किया कि कांग्रेस का टिकट मिलने पर ही वो लीडर बनता है। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क़ियादत को मजबूत करने की अपील की। इस मौके पर सदर PCC बी सत्यनारायणा ने कांग्रेस की 127 साल तारीख पर रोशनी डालते हुए कहा कि कांग्रेस ने अवाम की खातिर कई कानून बनाए कि जो अवाम के बेहतर मफाद में हैं। उन्होंने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों से मुखातिब होते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी की क़ियादत में जो फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं उसको अवाम तक पहुँचाते हुए कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहिए। साबिक सदर PCC D श्रीनिवास ने कहा कि कांग्रेस में इत्तेहाद न होने की वजह से ही कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और जब कांग्रेसियों में इत्तेहाद हो जाएगा तो कांग्रेस को शिकस्त देना मुश्किल हो जाएगा। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर, सदर PCC और रियासती वज़रा के अलावा कांग्रेस कायदीन ने गांधी के मुजस्समे और कांग्रेस के बानी AA ह्यूम की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। तकरीब में सेवा दल के 89 साल मुकम्मल होने पर सेवा दल के कारकुनों को मुबारकबाद भी पेश की गई। इसके अलावा वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने 127 साल कांग्रेस के वाक़यात पर मबनी तस्वीर की नुमाइश का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। వారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన అభిమానం ఉండి వారి పనులు వారు చేసుకుంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేసుకుంటూ పోతా ఉంటారు. అందుకని గ్రామ స్థాయి నుంచి మనం ప్రతి ఒక్కరు కూడా గ్రామ స్థాయి నుంచి మనం కాంగ్రెస్ పార్టీని మనం పునాదులు గట్టిగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఈ రోజు వరకు మనకు నాయకులు ముఖ్యం కాదు. నాయకులు వస్తూ ఉంటారు, పోతా ఉంటారు. నాయకుడు చేసేది కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇస్తే నాయకుడు అవుతాం। वज़ीर आला और वज़ीर सेहत के दरमियान नाइत्तफाकी की खबर टेलीकास्ट होते ही वज़ीर सेहत DL रविंद्र रेड्डी परेशान हो गए। वाक़या यह है कि कैंप ऑफिस में वज़ारत सेहत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया को इत्तला दी गई थी। जब मीडिया के नुमाइंदे कैंप ऑफिस पहुँचे तो वो 2 घंटे बाद बाहर आए, लेकिन वो मीडिया को नज़रअंदाज करते हुए चले गए। इस सूरत हाल को देखकर मीडिया के एक गोशे ने अपने तौर पर यह ब्रेकिंग न्यूज़ टेलीकास्ट कर दी कि वज़ीर आला और वज़ीर सेहत के दरमियान नाइत्तफाकी पैदा हो गई है। इस पर वज़ीर सेहत DL रविंद्र रेड्डी परेशान हो गए और फौरी सेक्रेटेरिएट में मीडिया को तलब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। रियासती असम्बली के रूबरू गन पार्क पर TRS और तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कारकुनों के एहतजाज की वजह से कशीदगी देखी गई। तेलंगाना पर अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के लीडर M नरसिम्लू ने गन पार्क पर 2 रोज़ा भूख हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन गन पार्क पहुंचने से पहले ही पुलिस ने M नरसिम्लू और E दयाकर राव के बशमूल दीगर कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर पुलिस और तेलुगु देशम कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई, जबकि सदर TRS और तेलंगाना से मुताल्लिक़ तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के लीडर M नरसिम्लू के रिमार्क्स के खिलाफ TRS कारकुनों ने गन पार्क पहुंचकर एहतजाज किया। M नरसिम्लू जो गन पार्क पर 2 रोज़ा भूख हड़ताल करने वाले थे, उनके गन पार्क पहुंचने से पहले TRS के कारकुन वहां पहुंच गए और गन पार्क को दूध से धोया। इस मौके पर TRS कारकुनों ने M नरसिम्लू के अलावा तेलुगु देशम कायदीन के खिलाफ नारे लगाए। ताहम पुलिस ने TRS कारकुनों को भी गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। TRS सरबराह KCR तेलंगाना के नहीं हैं। उनके आबा व अजदाद विजयनगरम से तेलंगाना मुंतकिल हुए थे। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के लीडर M नरसिम्लू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के नाम पर 2009 में KCR ने जो मरण व्रत किया था, इस दौरान उन्होंने काफ़ी मौज मस्ती की और खाना पीना कुछ भी नहीं छोड़ा। M नरसिम्लू ने इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त KCR ने हॉस्पिटल की खबरों को बाहर जाने पर डॉक्टर्स को भी धमकाया था।
तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना के नाम पर आवाम को सिर्फ धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि आम हड़ताल के दौरान ही अलहदा तेलंगाना का हुसूल मुमकिन था, लेकिन केसीआर ने मरकजी हुकूमत के साथ खुफिया मुआहदा करते हुए तेलंगाना के साथ गद्दारी की। एम नरसिम्लू ने कहा कि केसीआर ने नकली पासपोर्ट दिलाने के नाम पर करीमनगर में कई अफराद को धोखा दिया है और आज करीमनगर में केसीआर दुबई केसीआर के नाम से जाने जाते हैं। ఏమన్నా తెస్తాడో ఏమో, గతంలో చెన్నారెడ్డి మోసం చేశాడు, ఈయన మాట్లాడితే నాకు ఎవ్వరు లేడు, నేను నా భార్య తప్ప ఎవ్వరు లేరు, నా పిల్లలు అమెరికాలో ఉన్నారని చెప్పాడు 2001లో. ఇవాళ మీరు గమనించాలే, నువ్వు ఏమి సాధించినవని ఈ సందర్భంగా నేను అడుగుతా ఉన్నా. నువ్వు చెప్పినటువంటి మాటలు ఇలా జనమంతా గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నారు. తెలంగాణ రాకపోతే చచ్చిపోతారని చెప్పినావు, తెలంగాణ వచ్చుడో కేసీఆర్ సచ్చుడో అని చెప్పినావు. जीएचएमसी के मेयर और डिप्टी मेयर के 30 दिसंबर को होने वाले इंतखाब को 3 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पार्लियामेंट के जारिया इजलास और फिर मौसमी हालात को देखते हुए इंतखाब को मुलतवी करने का फैसला किया गया। वाज़ेह है कि साबिक़ मेयर जीएचएमसी बी कार्तिका रेड्डी ने 5 दिसंबर को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, जबकि डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज ने 16 दिसंबर को अपना इस्तीफ़ा पेश किया था। कांग्रेस और मजलिस के दरमियान हुए मुआहदे के तहत आइंदा 2 साल के लिए मजलिस का मेयर होगा, जबकि डिप्टी मेयर कांग्रेस का होगा। डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवार का ऐलान 29 दिसंबर को करेगी। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में तफसीली जायजा लिया जा चुका है और 29 दिसंबर को गांधी भवन में इजलास मुनक्किद करते हुए डिप्टी मेयर के उम्मीदवार के नाम को क़तईयत दी जाएगी। बी सत्यनारायण ने बरक़ी शरहों में इजाफे से मुताल्लिक़ किए जा रहे प्रोपेगेंडे पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जब तक काबीना में इस पर फैसला नहीं लिया जाता बरक़ी शरहों में इजाफा नहीं होगा। तेलुगु देशम महिला मोर्चा की कारकुनों ने टी कृष्णा रेड्डी की क़ियादत में रियासत में शराब सिंडिकेट और बेकायदगियों के खिलाफ कलेक्टर हैदराबाद के रूबरू धरना दिया। तेलुगु देशम कारकुनों ने रियासत में शराब की मनमानी कीमतों और आज़ादाना फ़रोख्त के खिलाफ कलेक्टर को याददाश्त भी पेश की। तेलुगु देशम कारकुनों ने कांग्रेस के इक़्तिदार को शराब राज्यम से ताबीर किया और कहा कि हुकूमत सिर्फ शराब के ज़रिए माली फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने रियासत में मजीद 2600 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक जुमेरात को मजीद जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। रियासत में 10 महकूमों में मखलूआ 2805 जायदादों के लिए APPSC ने एलामिया जारी किया था। ख्वाहिशमंद APPSC की वेबसाइट पर तफसीलात का मुशाहिदा कर सकते हैं। तालीम मालूमात के हुसूल के लिए ज़रूरी है और मालूमात सुनहरे मुस्तक़बिल की ज़मानत होते हैं। तलबा के ग्रुप के साथ बातचीत करते हुए सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है जहाँ पर नौजवानों की कसीर तादाद पाई जाती है और अगर नौजवानों को बेहतर तालीम की सहूलतें फराहम की जाएँ तो हिंदुस्तान सुपर पावर बन सकता है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो रियासत को नॉलेज सिटी बनाना चाहते थे। वैसे भी नॉलेज के शोबे में रियासत सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि तालीम मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है और तलबा को इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने बलदी हल्के मुगलपुरा के इलाके सुल्तान शाही और वहाँ का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस इलाके में वाक़े कदीम कब्रस्तान की हिसारबंदी के काम में अशरार की रुकावट की इत्तला पर रुकन असम्बली ने यह दौरा किया, जिसमें वहाँ के रुकन बलदिया मुकर्रम अली भी उनके हमरा थे। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो बिला खौफ ख़तर काम अंजाम दे। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि कैसर होटल के करीब कदीम सरकारी बैतुल खला की अराज़ी पर कम्युनिटी हॉल की तामीर को मंजूरी दिलवाई गई है और बहुत जल्द वहाँ कम्युनिटी हॉल की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। देरीना मुतालिबा था कि वहाँ कम्युनिटी हॉल की इमारत तामीर हो, चुनांचे उस काम का भी आगाज़ हो चुका है, उसका भी मुआयना किया गया है। और ये कैसर होटल के से पहले गली में एक पुरानी मोहम्मद होटल के पास एक पुराना लैट्रिन है और यहाँ पर भी लैट्रिन के जो ज़मीन है उसके अतराफ से इंक्रोचमेंट हो रहे। जोनल कमिश्नर को बताया कि ये लैट्रिन को मुनज़्ज़म करके
ये रोड से वो रोड तक यहाँ पर एक रोड तामीर कर दी जाए, जाने आने के लिए और ये लोगों को सहूलत होगी और ये गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड की हिफाजत भी होगी। बहरहाल सुल्तान शाह इलाके में और मुगलपुरा डिवीज़न में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मज़ीद लोगों के जो भी निशानदेही की जाएगी वहाँ पर मजलिस बल्दिया से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी करके आजमपुरे में रेलवे ब्रिज की तोसी का काम जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरे का दौरा करते हुए तामीरी काम का जायजा लिया। वाज़ेह है कि रेलवे ब्रिज की तोसी मजलिस के एक अहम इंतखाबी वादे की तकमील है। काम मुकम्मल हो जाने के बाद अवाम को ट्रैफिक के एक मुस्तकिल मसले से निजात मिल जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रास्त निगरानी में अहमद बलाला ने मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए तामीरी काम के जल्द आगाज़ को यकीनी बनाया। रुकन असम्बली ने इस मौके पर फरहत नगर नाले पर मजलिस की नुमाइंदगी पर तामीर किए जाने वाले स्लैब का भी जायज़ा लिया। रुकन बलदिया शकील महमूद भी उनके साथ थे। अहमद बलाला ने ओहदेदारों को काम में तेज़ी लाने का मशवरा दिया। रुकन असम्बली मलकपेट ने इसके बाद आजमपुरे के सरकारी यूनानी दवाखाने का भी अचानक मुआयना किया और आवाम से मुलाकात करते हुए दवाखाने की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। रुकन असम्बली मुक्तदा अफसर खाने हकीमपेट इलाके के बलकापुर नाले के कामों और दीगर तरक्याती इक़दामात का जायज़ा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि बलकापुर के नाले का काम वज़ारत दिफा की जानिब से रोक दिया गया था, लेकिन अब इस मौजू पर इत्तफाक हो गया है। चुनांचे 6 करोड़ रुपए की लागत से नाले का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बेगमपेट के इलाके में 1500 गज़ अराजी पर तामीर किए जाने वाले एक उर्दू मीडियम स्कूल के बारे में बताया कि स्कूल की तामीर के खिलाफ एक लैंड ग्रैबर ने मुकदमा दायर कर दिया था। मजलिस की नुमाइंदगी की वजह से अदालत ने इसका फैसला हुकूमत के हक़ में किया है और बहुत जल्द तामीरी काम शुरू किया जाएगा। बाद अज़ां उन्होंने पीने के पानी, ड्रेनेज, बरक़ी सरबराही और सड़कों का भी जायज़ा लिया। उन्होंने बालाई मकामात पर पीने का पानी पहुँचाने के लिए एक नई पाइपलाइन बिछाने की हिदायत दी। रुकन असम्बली अफसर खाने ओवैसी प्लेग्राउंड वाक़े गोलकुंडा में राशन के कूपन्स तकसीम किए। उन्होंने मीडिया को बताया कि ये कार्ड्स रक्षाबंधा प्रोग्रामों में दरख्वास्त देने वालों को जारी किए गए हैं, जिससे 2 महीनों का राशन हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये कूपन्स अनकरीब उनके हल्के के तमाम दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर उनके हमराह साबिक़ डिप्टी मेयर जाफ़र हुसैन मेराज भी थे। साबिक़ पीसीसी सदर और अवामी लीडर पी जनार्दन रेड्डी की 4थी बरसी के मौके पर उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। रियासती वज़रा और दीगर कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासत नगर बलदी हल्के के रुकन बलदिया सलीम बेग ने जोनल कमिश्नर बलदिया और दीगर आला बलदी अहदेदारों के हमरा अपने हल्के का तफसीली पैदल दौरा किया और उन्हें तरक्याती कामों के दौरान मुतासर हुई सड़कों का मुआयना करवाया। सलीम बेग ने कहा कि कायदे मुक़द्दना अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल मसाई से रियासत नगर में 20 करोड़ रुपयों के तरक्याती काम मंजूर हुए हैं, जिनकी तामीर जारी है। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की लागत से आबी पाइपलाइन की तनसीब और 5 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन का काम जारी है और इस दौरान खुदाई की वजह से सड़कें शदीद मुतासर हुई हैं। सलीम बेग ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर उन्होंने जोनल कमिश्नर को ये दौरा करवाया और सड़कों की मरम्मत के लिए एक्शन प्लान के तहत काम करने का मुतालबा किया ताकि आवाम को तकलीफ न हो। एसआर नगर अमीरपेट के ताजरीन और 7 सीटर्स ऑटो ड्राइवर्स के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की और छोटे ताजरीन का मसला हल करवाने पर इजहार तशक्कुर किया। मकामी मजलिसी लीडर जीवी नायडू की क़ियादत में ताजरीन ने मजलिसी अराकीन असम्बली की गुलपोशी भी की और रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा किया। अहमद पाशा कादरी ने वफ़द को तयक़ुन दिया कि ऑटो ड्राइवर्स के मसले पर वो बहुत जल्द एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक CV आनंद से नुमाइंदगी करते हुए उनके मसले को हल करवाएंगे। ओवैसी हॉस्पिटल चौराहे पर एक हैवी ट्रक के उलट जाने से घंटों ट्रैफिक मुतासर रही। मकामी अफराद ने बताया कि सुबह 5 बजे के करीब ये भारी ट्रक करमन घाट की तरफ जाने वाली सड़क पर उलट गई, जिसकी वजह से ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हुआ। इसके बाद तकरीबन 10 बजे तक भी इस मसरूफ़ तरीन रोड पर ट्रक वैसे ही पड़ा हुआ था, जिससे ट्रैफिक में काफ़ी खलल पड़ा।
नारम राजेंद्र नगर के एक 60 साला साइंसदान एम नारायण रेड्डी के कत्ल केस में उस वक्त कामयाब पेशरफ्त हुई जब सरूर नगर पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जो कुत्तापेट के एक अपार्टमेंट में चौकीदार की हैसियत से काम किया करता था। तफ्तीश पर मुलजिम के सत्यनारायण मुतवत्तिन जड़चल्ला ने बताया कि उसे वॉचमैन की हैसियत से नौकरी फराहम की गई थी, लेकिन मकतूल उसे क्वार्टर खाली करने के लिए इसरार कर रहा था। हालांकि मकतूल ने यह क्वार्टर उसे फ़रोख्त करने का वादा किया था, तभी से वो मकतूल का दुश्मन हो गया था। एक दिन मौका पाकर उसने साइंसदान का कत्ल कर दिया और उसके वैलेट में मौजूद 6,600 रुपये निकाल लिए और फिर तवज्जो हटाने के लिए ख़ुद को भी ज़ख्मी कर लिया और चिल्लाने लगा कि नामालूम अफराद ने हमला कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम को अदालती तहवील में देने के लिए कोर्ट के हवाले कर दिया है। टास्क फोर्स ईस्ट जोन ने शहर में जाली वोटर शिनाख्ती कार्ड तैयार करने वाली 2 टोलियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहली टोली बीबी बाजार चौराहे के पास गिरफ्तार की गई, जिसका सरगना 24 साला जुबैर अहमद था जो तालाब कट्टे का साकिन है, जबकि दूसरी टोली अमीरपेट से पकड़ी गई जिसका सरगना 25 साला जय प्रकाश है जो यल्ला रेड्डी गुड़ा का साकिन है। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स ने बताया कि इन दोनों टोलियों के कब्जे से जुमला 33 जाली फोटो शिनाख्ती कार्ड्स, 1,670 होलोग्राम्स, तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर्स, एक वोटर लिस्ट और कई अशिया जब्त की गई। मज़ीद तहकीकात के लिए मुलजिमीन को भवानीनगर पुलिस और पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बोयनपल्ली पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके सरखों की वारदातों का पता चलाया है। रातों में मकानात का खुफल तोड़कर 5 मरतबा सरखा करने वाले आदि मुजरिम के रामू को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जबकि उसके कब्जे से मसरूखा तिलाई जेवरात और इलेक्ट्रॉनिक अशिया जब्त की गई। एक और वाक़े में लूनावाला बेकरी के पास बालानगर से बोयनपल्ली जाने वाली एक कार को रोका गया तो कार में मौजूद 2 अफराद फरार हो गए, जबकि ड्राइवर TS चंद्रा बोस पकड़ा गया। ड्राइवर ने बताया कि मफरूर इजराइल उर्फ किरण और उमा मुख्तलिफ फंक्शन हॉल्स में मेहमान बनकर जाते और सरखे किया करते थे। पुलिस ने कार ड्राइवर से 2.5 लाख रुपए लागती अशिया और खुद कार को भी जब्त कर लिया और दोनों मफरूर सारिकों को तलाश कर रही है। कोकटपल्ली पुलिस को एक खातून की जली हुई लाश दस्तयाब हुई है। बताया जाता है कि मकान में 52 साला सुनीता के अलावा उनकी बेटी और शौहर रहते थे। मकामी अफराद ने चारशंबे की सुबह लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मकाम वाक़या पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करके सुनीता के शौहर से वो पूछताछ कर रही है। अलवाल में TRS महिला मोर्चा की लीडर कविता ने पोलावरम प्रोजेक्ट की मनसूखी के लिए सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को एक याददाश्त पेश की। बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर अमलावरी से गिरिजन तबका बेघर होने का अंदेशा है। सदर जमहूरिया ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इसका जायजा लेंगी। गोपालपुरम पुलिस ने एक शख्स की मौत के जिम्मेदार 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर गोपालपुरम पुलिस गोपी ने 4TV को बताया कि विजयवाड़ा के रहने वाले डेविड ने 14 दिसंबर को गूगल लॉज सिकंदराबाद में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी। डेविड ने एक खुदकुशी नोट भी लिखा था जिसमें उसने अपनी मौत के लिए अपने दोस्त भीम शेट्टी और उसकी बीवी श्री लता को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया था। उन्होंने बताया कि भीम शेट्टी और श्री लता ने डेविड से 5,000 रुपये बतौर ख़र्च लिए थे और अरसे दराज तक चकमा देने के बाद एक चेक जारी किया जो बाउंस हो गया। डेविड जब रकम की वसूली के लिए हैदराबाद आया तो इन दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर डेविड ने खुदकुशी कर ली। कुलसुमपुरा पुलिस को एक खातून की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई है। पुलिस ने बताया कि 23 साला अश्विनी की शादी 5 साल पहले अंजनेलू के साथ हुई थी। पुलिस के बयान के मुताबिक शादी के कुछ अरसे बाद से अंजनेलू और उसके घरवाले अश्विनी को मजीद जहेज के लिए तंग किया करते थे। अश्विनी इस ताल्लुक से अपने वालिदैन को अक्सर शिकायत भी किया करती थी। वालिदैन ने अंजनेलू पर कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस अंजनेलू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स फेडरेशन की रियासती यूनिट के सदर की हैसियत से अनवर अली खान को तीसरी मरतबा नामजद किया गया है। अनवर अली खान अंग्रेज़ी रोज़नामा तेलंगाना डिप्लोमेट के एडिटर हैं।
इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।